Hello students, how are you? Welcome to the English classes. So today we are going to start our fifth lesson in English Gulmohar Language for Life 9th edition. Okay, so before starting that I want to tell you that stay home and stay safe and start learning, start studying, okay, and use sanitizer and mask whenever you go out, okay, and take care of your health. So open your book of fifth class and we'll do fifth lesson, Moise Kite. Okay, so start studying. So the name of the lesson is Moise Kite. So this lesson is written by Thomas Anthony Tommy De Paula, pronounced Tommy De Paula, is an American writer and illustrator. He has written more than 200 children's books and is best known for the books such as Strega Nona and 26 Fairmount Avenue. He received the Children's Literature Legacy Award for his lifetime contribution to American children's literature in 2011. So students, first of all I will tell you the brief summary of the story, okay? So one morning in Hawaii, a boy named Moi decided to build a kite. Moi built a beautiful kite with the largest and the strongest piece of a cloth given by his mother. He used sticks of bamboo for the cross pieces and branches of the alona shrub to make a strong rope. Moi's kite was a work of art and he wanted to fly his kite really high. For that, he decided to go to the keeper of the winds for the perfect wind to fly his kite high. Moi's friends happily helped him to carry his kite to the keeper of the winds. While the group paraded through the village, everybody left their work and came to watch. When the group finally approached the cave of the winds, they could see the keeper of the winds sitting by the entrance. "O keeper of the winds," cried Moi, "please bring Ipu Aiki, the small god that holds the gentle breezes, and let us fly our kite." The keeper was a wise old man, and she knew that the gentle winds of the Ipu Aiki would play kindly with the boy. So she went into the cave and returned carrying small god and singing her song. "O wind, soft wind of the Hilo, wind from the god of the everlasting winds, come from Ipu Aiki. O wind, soft wind of the Hilo, come gently, come mildly." The soft wind of the Hilo drifted out and tugged out the kite, and Moi let out some low cord, and he and his friends cheered as the kite soared like a great bird over the sea. The keeper stood silently and looked on with a smile. After a while she said, "That's enough for today. The wind should not be taken for granted. They'll respect you if you respect them." After a few moments of the silence, Moi nodded and said, "Yes, O keeper of the winds, call your winds back to you." The woman now let the wind enter Ipu Aiki god. As the winds returned, the kite slowly dropped. Moi reeled the line, caught the kite, and went back home with his friends while the keeper closed the lid. Moi was not content with the day's fun. He had seen how high his kite had gone, and now he wondered how much higher it could fly. Next day he went back to the cave of the winds with his friends and asked the keeper for the four winds and the greater god and the bigger god. Ipu Nui, the keeper, advised Moi not to try and play with the four great winds, but Moi would not heed her advice. He thought he was as strong as great wind, so he invited them to come and fly his kite. The winds came with a loud roar and lifted Moi's kite far out into the sea. The keeper ran towards the entrance, but it was too late. The north and the west winds pushed her over, but the Mois laughed with joy to see his kite high in the sky and keeper trying to fly. Tried in vain to close the lid of the god. Ipu Noi. As the wind blew, the kite flew into the clouds. The god began to hum in the wind, and the kite disappeared into the darkening clouds.
So Moy is still thinking that the wind was in control, but wind was not in his control. So Moy asked his wind to return to the god, but the winds grew stronger and stronger, and the rope snapped, and the kite disappeared beyond the mountain. But the winds continued to range over the entire island. The winds ranged, blowing away everything. The winds proved who was stronger. The winds proved who was stronger. They also brought rain, making people run indoors. The keeper worked all night gently, convinced wind to come back finally. The keeper was able to control the four great winds and put them back under the god when the storm ended. The people of the village did not want to have anything to do with Moy because he had created a huge disaster by releasing the great winds. They called him he who brought the great storm. Even his friends avoided him. Finding himself alone with nothing to do, Moy made yet another kite, but this one was smaller. He flew it near his home when there is no one else. He flew it to learn the movement of the winds. Soon he learned to predict the weather. In the initial stage, no one believed him. One day he saw a man going off the fields. He warned them it will rain today, tomorrow will be better day to work. But they ignored his words. But soon it began to rain. They were shocked. Another day, Moy warned a group of men that there would be a storm, but don't dry your clothes. They ignored, and he was right. The storm came. When they realized he was right, they began to rely on his wisdom. They began to call him the teacher of the weather. Even the keeper of the winds became friendly with him. Once again, Moy never called either Ipu Aiki or the Ipu Nui. He had learned to respect the winds. The moral of the story is we should respect the nature and it will respect you. Okay, so students, I will also explain you this story in Hindi. Okay, so students, listen carefully. Long ago in Hawaii, people told stories to explain the wonders of the nature. बहुत पहले की बात है, हवाई में सभी लोग बच्चों को स्टोरी सुनाते थे और उनको एक्सप्लेन करते थे यहाँ पे नेचर के बारे में, उनकी अच्छी अच्छी वस्तुओं के बारे में. एंड द स्टोरी इज़ अबाउट द मॉई हु वांटेड टू टेम द विंड्स. और ये स्टोरी एक मॉई नाम के लड़के की है जो विंड्स को, हवा को टेम करना चाहता था. टेम मीन्स कंट्रोल करना चाहता था. ओके, आप यहाँ पर मीनिंग्स देख सकते हो. टेम मीन्स मेक समथिंग इजी टू कंट्रोल. ओके, तो वो लड़का विंड्स को कंट्रोल करना चाहता था. सो वन मॉर्निंग मॉय डिसाइडेड दैट ही हैड टू बिल्ड अ काइट. एक दिन उसने सोचा कि वो एक काइट बनाएगा. एंड वॉट अ काइट ही बिल्ट. हिज मदर गेव हिम हर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ. और उसने कितनी अच्छी काइट बनाई कि उसके मदर ने उसे एक बहुत बड़ा कपड़े का टुकड़ा दिया. फॉर द क्रॉस पीसेस ही यूज स्टिक्स ऑफ बम्बू. और क्रॉस पीसेस के लिए उसने बम्बू स्टिक्स यूज़ किए. एंड ही कट ब्रांचेस फ्रॉम द ओलोना श्रब टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रोप. और स्ट्रॉन्ग मजबूत रस्सी के लिए उसने ओलोना श्रब की ब्रांचेस कट की, डालियाँ. ओके, तो Moy's kite was a work of art and he told himself, I must get a special wind to fly my kite. Moy's की काइट बहुत ही अच्छी काइट थी. उसने अपने आप को कहा कि मुझे अपनी काइट के लिए एक स्पेशल विंड की ज़रूरत है, स्पेशल हवा की ज़रूरत है. आई विल गो टू द कीपर ऑफ द विंड्स. मैं कीपर ऑफ द विंड्स के पास जाऊँगा. शी विल लेट मी हैव द परफेक्ट विंड टू मेक माई काइट फ्लाई रियली हाई. और वो मुझे अपनी काइट के लिए एक परफेक्ट विंड देगी ताकि मैं अपनी काइट को बहुत ऊपर तक उड़ा सकूं. हिज फ्रेंड्स हैप्पीली गैदर्ड अराउंड टू हेल्प हिम कैरी हिज काइट टू द कीपर ऑफ द विंड्स. उसके फ्रेंड ने भी उसका हैप्पीली, बहुत खुशी से वो उसके साथ चले गए और उसकी काइट को पकड़कर कीपर ऑफ द विंड्स के पास गए. विंड्स मीन्स हवा, जो कीपर होता है, रखने वाला. तो एज अ ग्रुप पैरेडेड थ्रू द विलेज, एवरीबडी लेफ्ट द वर्क एंड केम टू वॉच. सभी ग्रुप, पैरेडेड मीन्स वॉक इन अ लार्ज ग्रुप, एक साथ ग्रुप में जाना. ओके, इन एन ऑर्डरली फैशन टू सेलिब्रेट. सो सभी बच्चे एक साथ गए
एंड एवरीबडी लेफ्ट द वर्क एंड केम टू वॉच, सभी लोगों ने अपना काम भी छोड़ दिया और उसको देखने लग गए. व्हेन द ग्रुप फाइनली अप्रोच द केव ऑफ द विंड्स दे कुड सी द कीपर ऑफ द विंड्स सिटिंग बाय द एंट्रेंस. जब सारा ग्रुप केव ऑफ द विंड्स यानी विंड्स की तरफ, गुफा की तरफ चले गए तो उन्होंने देखा कि कीपर ऑफ द विंड्स एंट्रेंस पर ही बैठी है. O keeper of the winds, cried Moi, please bring Ipu Aiki, the small god that holds the gentle breezes, and let us fly our kite. Moi ने कहा कीपर ऑफ द विंड्स को कि प्लीज़ ईपू आइकी को लेके आओ ताकि मैं अपनी काइट को उड़ा सकूं. द कीपर वॉज अ वाइज ओल्ड मैन. कीपर बहुत ही बुद्धिमान और ओल्ड वुमेन थी. एंड शी न्यू द जेंटल विंड्स ऑफ ईपू आइकी वुड प्ले काइंडली विद द बॉय. और वह जानती थी कि ईपू आइकी की जो जेंटल विंड्स है, अच्छी सी स्लो विंड्स है, वो उस बॉय के साथ अच्छे से खेल सकती है. So she went into her cave and returned carrying a small god and singing her song. इसलिए वो केव के अंदर चली गई और अपने हाथ में एक छोटा सा गॉड लेके आई और अब सिंगिंग करते करते वो आ रही थी. गॉड मीन्स GOURD. गॉड मीन्स अ फ्लैशी वेजिटेबल विद अ थिक स्किन. एक फ्लैशी वेजिटेबल होता है जिसकी स्किन थिक होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन टर्न द पेज नंबर 42. So, O wind, soft wind of halo, wind from the god of everlasting winds, come from the Ipu Aiki. O wind, soft wind of halo, came gently, come mildly. Okay, तो ऐसे वो कीपर ऑफ द विंड्स ऐसे सिंगिंग करते करते वो आती है. The lid of the god began to stir and the keeper carefully opened it. तो उस गॉड का जो लिड था, ढक्कन था, वो धीरे हिलने लग गया और कीपर उसे आराम से खोल रही थी. Slowly the soft wind of halo drifted out and tugged at the kite. धीरे धीरे वो जो सॉफ्ट विंड थी हेलो की वो बाहर आ गई और काइट के पास चली गई. Moi let out some cord and he and his friends cheered as the kite soared like a great bird over the sea. Here the meaning of the soared is rose high into the air. हवा में ऊपर तक चले जाना. तो Moi let out some cord और वो और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी काइट आसमान में उड़ने लग गई. द कीपर स्टूड साइलेंटली एंड लुक्ड ऑन विद अ स्माइल. कीपर उन्हें देख रही थी हंसते हंसते स्माइल करके. आफ्टर वाइल शी सेड, दैट्स इनफ फॉर टुडे. द विंड्स शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. दे विल रिस्पेक्ट यू इफ यू रिस्पेक्ट देम. तो कीपर ने थोड़ी देर बाद तो कहा कि अब आज के लिए काफ़ी है और आपको ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए और आप दे विल रिस्पेक्ट यू. विंड्स आपको रिस्पेक्ट करेगा जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे. ओके, तो टेकन फॉर ग्रांटेड मीन एक्सेप्टेड एंड ट्रीटेड इन अ केयरलेस मैनर. ओके, अगर आप केयरलेस मैनर से उसके साथ बिहेव करोगे तो वो आपके साथ भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. सो आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ द साइलेंस Moi nodded and said, yes, O keeper of the winds, call your winds back to you. So कुछ देर के बाद Moi nodded and said, Moi ने कहा कि हाँ, आप अपने विंड्स को बुला लीजिए. Call your winds back to you. The woman now removed the lid from the Ipu Aiki. वुमेन ने Ipu Aiki से लिड हटाया and the winds returned the kite slowly. तो विंड्स वापस अपने उसमें चले गए कॉर्ड में और काइट नीचे आ गई. Moi reeled in the line and caught the kite and went back home with his friends. मॉवी भी अपने फ्रेंड्स के साथ वापस अपने घर चला गया. एंड वाइल द कीपर क्लोज द लिड, कीपर ने उस लिड को भी ढक दिया. द Moi वॉज नॉट कंटेंट, बट Moi वॉज नॉट कंटेंट. Moi खुश नहीं था. कंटेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था. ही हैड सीन हाउ हाई इज काइट हैड गॉन. उसने देखा है कि उसकी काइट कितनी ऊपर तक गई है. एंड ही नाउ वंडर जस्ट हाउ मच हायर इट कुड फ्लाई. अब वो ये सोचता है कि वो उसकी काइट वो कितनी ऊपर तक ले जा सकता है. द नेक्स्ट डे Moi एंड हिज फ्रेंड्स टुक अ ग्रेट काइट एंड वेंट बैक टू द केव ऑफ द विंड्स. दूसरे दिन Moi और उसके फ्रेंड्स फिर से अपनी बड़ी सी काइट लेकर केव ऑफ द विंड्स चले गए. ओ कीपर ऑफ द विंड्स ब्रिंग आउट ईपू नुई. फिर से गॉड ऑफ द 4 ग्रेट विंड्स क्राइड आउट Moi. Moi ने कहा कि ईपू नुई को लेके आओ. ग्रेट 4 ग्रेट विंड्स को लेकर आइए. द विंड्स ऑफ द ईपू आइकी वेर इनफ Moi, शी रिप्लाइड. कीपर ऑफ द विंड्स ने कहा कि ईपू आइकी की विंड्स आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है. डोंट यू रिमेंबर वॉट आई सेड टू यू? यू मस्ट रिस्पेक्ट द विंड्स, स्पेशली द 4 ग्रेट विंड्स.
तो वो कहती है कि तुम्हें विंड्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली 4 ग्रेट विंड्स को. बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज अ 4 ग्रेट विंड्स सेड मॉय एंड बिगेन टू चैंट. अब मॉय कहता है कि मैं तो 4 ग्रेट विंड्स की तरह मैं उसके जैसा ही स्ट्रॉन्ग हूँ. और ओ 4 ग्रेट विंड्स माइटी एज द कॉज विंड फ्रॉम द गॉड of everlasting winds come from Ipu Nui. Churning winds hasten and come to me. तो कीपर ऑफ द विंड्स बुलाती है 4 ग्रेट विंड्स को. और फ्रॉम इनसाइड द केव केम अ माइटी रोर, और अंदर से जोर की आवाज़ आने लग गई. So students, you can turn the page number 43. From inside the cave came a mighty roar. The keeper ran towards the entrance. Keeper दौड़ी दौड़ी entrance की तरफ चली गई, अंदर चली गई. But she was too late. वो बहुत लेट हो चुकी थी. The north wind and the east wind pushed her over and snatched the kite from the hands of the moist friends. नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड पुश होकर, मतलब उसको धक्का देकर बाहर चली गई और काइट को खींचकर मॉइस के हाथों से खींचकर वो बाहर चली गई. मॉइस काइट वॉज स्वेप्ट फार आउट ओवर द सी. मॉय भी दौड़ा दौड़ा बाहर चला गया. ही लाव्ड विद डिलाइट व्हेन ही सॉ हाउ फार हिज काइट हैड गॉन. और वो खुशी के मारे हंसने लग गया और देखा कि उसकी काइट कितनी ऊपर तक चली गई. एंड एट द कीपर हु वॉज स्ट्रगलिंग वेनली, और वो भी ट्राइंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी टू पुट द लिड बैक ऑन द ईपू नुई. वो भी बहुत कोशिश कर रही थी कि उस लिड को वापस ईपू नुई पे रखे. बट then the west wind and the south wind howled out of the cord and knocked it from the woman's hands. और उसी वक्त वेस्ट विंड और साउथ विंड भी वहाँ से निकल कर बाहर चली गई. and the kite went as high as the cord was long. काइट इतनी ऊपर तक चली गई जितना वो कॉर्ड लॉन्ग था. and then it tugged fiercely at the cord. और बाहर सारी विंड्स बाहर चली गई. द कॉर्ड बिगेन टू हम इन द विंड. और कॉर्ड भी हवा में हम करने लग गया, जूम करने लग गया. एंड द काइट डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनिंग क्लाउड्स. और काइट डार्कनिंग क्लाउड्स यानी गहरे बादलों में जाकर गायब हो गई. थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, मॉय कॉल्ड आउट. अब देखा कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल है. मॉय चिल्लाने लग गया, ओ विंड्स माइटी एज द गॉड्स रिटर्न टू ईपू नुई. वापस वो भी कहने लग गया कि ओ विंड्स माइटी एज द गॉड्स, प्लीज़ आप रिटर्न हो जाइए, वापस आ जाइए ईपू नुई में. बट ऑफ कोर्स द विंड्स वेर बियॉन्ड हिज कंट्रोल. और देखा जाए तो विंड्स जो थी उसके कंट्रोल से बाहर थी. द रेग्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल द कॉर्ड अटैच टू द काइट स्नैप विद अ माइटी क्रैक. उन्होंने बहुत कोशिश की. रेज्ड मीन्स ब्लू फोर्सफुली. वो इतनी हवा इतनी तेज़ चल रही थी, स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसे पकड़ नहीं पाए. और Moy almost fell backwards. The kite sailed away over the mountain, never to see again. Moy तो पीछे हट गया और काइट उड़कर माउंटेन यानी पहाड़ों की तरफ चली गई जो कभी भी दिखाई नहीं देगी. So students, you can turn the page to 44. The winds continued to rage over the entire island. A heavy rain sent people scurrying in all the directions. The winds had proved who was stronger. The winds continue. Winds means हवा कंटिन्यू थी. एंड टू रेज ओवर द एंटायर आइलैंड. ओके, पूरी तरफ जा रही थी, पूरे आइलैंड में नष्ट कर दिया. अ हैवी रेन सेंट पीपल स्करिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. और उस तूफ़ान की वजह से, इतनी तेज़ हवा चलने की वजह से तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई और सभी तरफ लोग इधर उधर भागने लग गए. द विंड्स हैड प्रूव्ड हु वाज स्ट्रॉन्गर. विंड्स ने प्रूव कर दिया कि कौन स्ट्रॉन्गर है. एट लास्ट द कीपर ऑफ द विंड्स पाउंड्स ऑन ईपू नुई and took it back to the cave. और आखिर में कीपर ऑफ द विंड्स पाउंस ऑन ईपू नुई के ऊपर पाउंस किया एंड टुक बैक टू द केव. और केव में लेकर चली गई. शी वर्कड ऑल थ्रू द नाइट जेंटली कॉक्सिंग द विंड्स बैक इनटू द गर्ड. और वो पूरी रात तक मेहनत करती रही ताकि वो ईपू नुई को, उस विंड्स को वापस गॉड में ला सके. कॉक्सिंग मीन्स परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग इन अ काइंड एंड अ जेंटल वे. उनको समझा सके कि वापस अपने कॉर्ड में आ जाए. Finally the storm ended. People started calling Moy he who brought the great storm. आखिर में storm थम गया. सभी लोग मॉय को ऐसा कहने लग गए कि ये वही लड़का है जो great storm लेकर आया, बड़ा सा तूफान लेकर आया. His friends looked the other way and when Moy came to visit, Moy
अब मॉय उसके फ्रेंड्स दूसरी तरफ चली जाते थे जब भी मॉय उनसे मिलने जाता था। फाइंडिंग हिमसेल्फ अलोन विथ नथिंग टू डू, मॉय बिल्ट अनदर काइट। अब उसके पास कुछ भी नहीं था करने को क्योंकि उसके दोस्त भी उससे दूर चले गए, तो मॉय ने एक और काइट बनाई। इट वॉज स्मॉलर दैन द फर्स्ट, और वो पहले वाली से भी छोटी थी। ही फ्लू इट नियर हिज होम वैन देयर वॉज नो वन एल्स अबाउट, और वो अपने घर के आसपास उस काइट को उड़ाता जब उधर कोई नहीं होता। He would tie the kite to a rock and study its movement in the sky. और वो इस काइट को रॉक को बांध देता और उसकी मूवमेंट्स देखता आसमान में, वो कौन सी तरफ जा रही है। Soon he could tell when the weather would be a fine or a stormy. One day he noticed some man going off to the fields. और बहुत जल्द वो वेदर को पहचानने लग गया कि हाँ, वेदर वुड बी फाइन और स्टॉमी, वेदर अच्छा है या तूफ़ान आने वाला है। वन डे ही नोटिस सम मैन, एक दिन उसने कुछ आदमियों को खेतों की तरफ जाते हुए देखा। तो मॉय ने कहा, इट विल रेन टुडे। कॉल्ड आउट मॉय, टुमारो विल बी अ बेटर डे टू वर्क इन द फील्ड्स। मॉय ने कहा कि आज बारिश आने वाली है, आज आप मत जाइए, कल आप काम कर सकते हो, कल का दिन अच्छा रहेगा खेतों में जाने के लिए। लेकिन द मैन जस्ट काउल्ड एट हिम मैन, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और आगे चले गए। बट सून इट डिड बिगिन टू रेन, और तुरंत ही बारिश आ गई। द मैन केम रनिंग बैक टू द विलेज लुकिंग इन अमेजमेंट ऑन एट मॉय, तो और उसी वक्त उन सभी आदमियों को वापस अपने विलेज जाना पड़ा और मॉय को भी देखते रह गए कि इसने जो कहा सच कैसे हो गया। Another day, Moy warned a group of women that their clothes would be blown away from the drying place. दूसरे दिन मॉय ने और बहुत सारी औरतों को वार्न किया, चेतावनी दी कि उनके जो कपड़े हैं वो ड्राइंग प्लेस से उड़ जाएंगे क्योंकि उनकी काइट ने उसे बताया है। हिज काइट टोल्ड हिम दैट देयर वुड बी स्टॉर्म दैट डे। उसकी काइट ने बताया कि आज हवा चलने वाली, तेज़ हवा चलने वाली, स्टॉर्म आएगा। लेटर दे वर आउट इन द यार्ड चेजिंग देयर क्लोथ्स विच वर ब्लोइंग आउट अबाउट इन द स्टॉर्म, और कुछ देर बाद तेज़ हवा चली जिनकी वजह से उनके कपड़े बाहर चले गए। In the time, the village people began to depend on Moy and his friends. In the time, village people began to depend on Moy and his friends. और उसी वक्त लोगों ने, कुछ दिनों बाद विलेज लोगों ने मॉय पर डिपेंड करना शुरू कर दिया और उसकी काइट पर डिपेंड होने लग गए। He taught them how to tell from the dancing movements of the kite which days would be good for planting, fishing or drying clothes. और उसने सभी को ये सिखा दिया कि उसकी काइट के जो डांसिंग मूवमेंट्स है तो उससे पता चल जाता था कि कौन सा दिन प्लांटिंग के लिए अच्छा है, फिशिंग के लिए अच्छा है या क्लोथिंग के लिए अच्छा है। सो पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम द टीचर ऑफ द वेदर। अब सभी लोग उसे टीचर ऑफ द वेदर के नाम से जानने लगे और उसे कहने लगे। इवन द कीपर ऑफ द विंड्स नो लॉन्गर शन्ड हिम, और जो कीपर ऑफ द विंड्स है वो भी उनसे बात अच्छे से करने लग गई। एंड मॉय हैड लर्नड दिस लेसन, और मॉय ने ये शिक्षा ली इस लेसन से, इसी उसने ये सीखा कि नेवर अगेन डिड ही कॉल फॉर द विंड्स और विंड्स ऑफ ईपो आइकी और ईपो नहीं, और उस दिन के बाद से कभी भी उसने विंड्स ऑफ ईपो आइकी या ईपो नुई को नहीं बुलाया। Okay, so students, you have to listen this video 2 times for the proper understanding of the story. Okay, goodbye.